Hello students, welcome to Super 7 revision series. This is the third video in which I am going to tell you about 7 diagram based expected questions which can come in CBSE exams. This is the first diagram from chapter number 8. It is the structure of an antibody molecule. What are these antibody molecules? Antibodies are used by immune system to identify and to neutralize the effect of pathogens like bacteria and viruses, and these pathogens are called as antigens. These antibodies are produced by B lymphocytes in the blood, and chemically they are made up of proteins. They are also called as immunoglobulins or Ig. Different types of antibodies are IgA, IgM, IgE and IgG. Now come to the structure of antibody. ये वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स. 2 हैवी चेन्स होती हैं जो लॉन्गर हैं, जो ब्लैक कलर के 1 and 2 से मेंशन किया गया है, और 2 शॉर्टर चेन्स हैं जो लाइट चेन्स कहलाती हैं, जो ब्लू कलर के नंबर से मेंशन किया गया है. सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो रिटन एज H2L2. देर आर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑल्सो, जो ऊपर दिखाया गया है 1 and 2 रेड कलर के नंबर से मेंशन किया गया है. ओके, नाउ these antibodies are present in the blood, so the response produced by them is called as humoral immune response, and the immunity which is developed due to the presence of antibody is called as acquired immunity. Now see the question. यहाँ पर identify करना है A, B, C को. A is antigen binding site, B is light chain and C is heavy chain. क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए. केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर बी lymphocytes and the immune response produced by these antibodies is called humoral immune response. Second diagram is from chapter number 6. It is a structure of lac operon. Lac is lactose and operon is a group of closely related structural genes which are transcribed together and regulated by common promoter and regulatory gene. This is first elucidated by Jacob and Monod. Now let us see the structure of lac operon. नीचे का डायग्राम देखिए. यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, Z, Y and A. Z will help in the formation of beta galactosidase. This enzyme convert lactose into glucose and galactose. Y gene help in the formation of permease. This will increase the permeability of cell to lactose, and A will help in the formation of trans acetylase. और ये तीनों एंजाइम जरूरी हैं फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म. क्लियर. अब ऊपर का स्ट्रक्चर पर आइए. स्ट्रक्चरल जीन्स के नेक्स्ट है ऑपरेटर, एंड नेक्स्ट टू ऑपरेटर इज अ प्रोमोटर जो RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है. नेक्स्ट टू प्रोमोटर इज अ रेगुलेटरी जीन और लैक आई, एंड दिस लैक आई प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन. Now, when the lac operon is off, see number 1, when lactose is absent, जब lactose नहीं है तो क्या होगा? Regulatory gene produce करेगा repressor protein, and this repressor protein will bind with the operator, and now the RNA polymerase is unable to do the transcription, unable to catalyze the transcription. Transcription stop हो जाता है, operon off हो जाता है. नीचे के स्ट्रक्चर पर आइए. जब लैक्टोज प्रेजेंट है, व्हाट विल हैपन? लैक्टोज विल बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, एंड दिस इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर प्रोटीन इज अनेबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर. एट दिस स्टेज व्हाट विल हैपन? नाउ RNA पॉलीमरेज कैन इजीली कैटलाइज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है और लैक ऑपरॉन ऑन हो जाता है. दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड एज नेगेटिव कंट्रोल व्हेन द बाइंडिंग ऑफ अ प्रोटीन प्रिवेंट्स एन इवेंट. कौन सा प्रोटीन है? रिप्रेसर प्रोटीन. जब ऑपरेटर से बाइंड करता है तो इवेंट यानी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव कंट्रोल. सी द क्वेश्चन. यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है लैक ऑपरन का. ए पार्ट देखिए. आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द रिप्रेसर प्रोटीन विल अटैच नॉर्मली. इट इज द ऑपरेटर और ओ रीजन. अंडर सर्टेन कंडीशंस रिप्रेसर इज अनेबल टू अटैच एट दिस साइट. इफ इंड्यूसर लाइक लैक्टोज bind to repressor and inactivates it. अब आपको ZYA के प्रोडक्ट बताने हैं. Z will help in the formation of beta galactosidase, Y will form permease and A will form trans acetylase.
Why this regulation is called negative regulation? Because binding of repressor to the operator turns off the operon and transcription is inhibited. Next diagram is from chapter number 11. ये gel electrophoresis का diagram है. What happens? When cutting of DNA is done by restriction endonuclease, many fragments of DNA are formed and these DNA fragments can be separated and isolated by gel electrophoresis. Clear? अब ये diagram पर आइए. As DNA is negatively charged, so when fragments are allowed to pass under electric field through matrix, they move towards anode. Diagram में देख सकते हो, DNA they will start moving towards the anode. ये मैट्रिक्स किस चीज़ का बना हुआ है? मैट्रिक्स इज एगरोज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स. नाउ व्हाट विल हैपन? DNA फ्रेगमेंट्स सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज व्हेन दे पास थ्रू द एग्रोज ड्यू टू द सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोज, क्योंकि एग्रोज छलनी की तरह काम करता है. सो व्हाट विल हैपन? जो स्मॉलर साइज के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर तक चले जाते हैं टुवार्ड्स बी, और जो बिगर साइज के DNA के फ्रेगमेंट्स हैं दे रिमेन टुवार्ड्स द ए साइड. क्लियर? नाउ DNA के फ्रेगमेंट्स हमको मिल चुके हैं. इसको विजुलाइज करना है, वो कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 3 पर आइए. DNA कैन बी विजुलाइज बाय स्टेन इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. जब इनको एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से तो ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देने लगते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट विल वी डू? अब नेक्स्ट प्रोसेस है इल्यूशन. क्या होगा इसके अंदर? द सेपरेटेड DNA बैंड्स आर कट फ्रॉम एग्रोज जेल. एग्रोज जेल में से इनको निकाल लिया जाता है और देन एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम जेल पीसेस. दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन. नाउ टू द क्वेश्चन. ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने. वाई हैव DNA फ्रेगमेंट्स इन बैंड D मूव्ड फार्दर अवे इन कंपैरिजन टू दोज इन बैंड C? Because DNA fragments in band D are smaller than those of band C. Okay. Identify the anode and in the diagram it is towards B. How are these DNA fragments visualized? Ethidium bromide used to stain DNA fragments and then exposed to ultraviolet light. Orange colored bands became visible. Next diagram is from chapter number 12. यहाँ पर दिखाया गया है maturation of pro-insulin into insulin. सबसे पहले देखते हैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर. इंसुलिन हैज 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन A एंड चेन B. आप देख सकते हो ब्लू एंड ग्रीन कलर की 2 चेन हैं A एंड B. दीज चेन्स दे लिंक्ड विद डाइसल्फाइड ब्रिजेस. नेक्स्ट, व्हेन दिस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड, it is synthesized in the form of pro-insulin or pro-hormone because it contains extra C peptide. अब डायग्राम देख सकते हो pro-insulin का. It contains A chain, B chain and C peptide also. और जब C peptide को निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो we get the mature insulin और functional insulin. Okay. अब इस functional insulin को large scale पर कैसे बनाया गया? In 1983 एले लिली एक अमेरिकन कंपनी था जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस फंक्शनल इंसुलिन को बनाया. व्हाट दे डिड? दे प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंस जो चेन A को बना रहे थे और चेन B को बना रहे थे, एंड दे इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई. उनको चेन A मिल गया, चेन B भी मिल गया. ओके, देन दे कंबाइंड दीज 2 चेन्स बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड वर एबल टू मेक द functional insulin, and this insulin is used to treat the diabetic patients. क्वेश्चन देखिए आपके सामने है. प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. आपको ए में बताना है कि प्रो इंसुलिन को फंक्शनल इंसुलिन कैसे बनाया जा सकता है. बाय रिमूविंग द सी पेप्टाइड चेन. बी पार्ट देखिए. अमेरिकन कंपनी एले लिली ने कौन सा टेक्निक यूज किया था ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए? इट इज द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. सी पार्ट देखिए. हाउ आर द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अ फंक्शनल इंसुलिन केमिकली हेल्ड टुगेदर? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ इज प्रो इंसुलिन डिफर फ्रॉम द फंक्शनल इंसुलिन? प्रो इंसुलिन कंटेन एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड सी पेप्टाइड विच इज एब्सेंट इन द फंक्शनल इंसुलिन. नेक्स्ट डायग्राम इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11. इट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. क्या करते हैं इस रिएक्शन से? We can synthesize many copies of DNA or copies of genes of our interest.
ओके इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? थिंग्स रिक्वायर्ड आर, वी रिक्वायर 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, छोटे छोटे स्ट्रेचेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ डीएनए। इसके बाद एक चाहिए डीएनए पॉलीमरेज और एक चाहिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से, ए पर आइए। डीएनए है हमारे पास, इसको हीट किया जाता है एट 94 डिग्री सेल्सियस और दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। ओके सेकेंड स्टेप है एनिलिंग। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास 2 प्राइमर्स हैं, one primer will attach with one strand of DNA and second primer will attach with the second strand of DNA. This is called as annealing. After annealing, primer attach हो चुके हैं, next step is extension. यहाँ पर हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। ऑर्डिनरी डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा क्योंकि वो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता, हीट को विथस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें चाहिए टैग पॉलीमरेज और थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो कहाँ से मिलेगा? बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वाटिकस से। अलॉन्ग विद दिस वी रिक्वायर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ओके नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है दे स्टार्ट अटैचिंग टू द प्राइमर्स और एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट वी गेट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम 1। अगर इसको 30 साइकिल्स करें इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, तो वी मे गेट 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। ओके सो 3 स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं? डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। नाउ सी द क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर ABC को आइडेंटिफाई करना है और आपको इनको डिफाइन करना है। A इज डीनेचुरेशन, B इज एनिलिंग एंड C इज एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हीट किया जा रहा है 94 डिग्री सेल्सियस पर और स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं। एनिलिंग में प्राइमर्स को अटैच किया जाता है और एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रैंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई इज टैग पॉलीमरेज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी डीएनए पॉलीमरेज इन अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? बिकॉज टैग पॉलीमरेज कैन विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर व्हाइल द ऑर्डिनरी डीएनए कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। इसका सोर्स क्या है टैग पॉलीमरेज का? इट इज द थर्मस एक्वाटिकस। So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. I think अब आप जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो इजीली कर पाएंगे।